السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس کلاس میں جتنے بھی قاعدے یہاں تک پڑھے تھے ہم، جو بیسک قاعدے، ان کو ہم ایک بار ریوائز کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مد اصلی پڑھے تھے۔ تو مد اصلی کیا ہے؟ مد کا مطلب ہے آواز کو کھینچنا، اور اصلی یعنی یہ اوریجنل مد ہے جو ہمارے منہ کے خالی حصے سے نکلتا۔ تو آواز کو کب کھینچتے ہم؟ حروفوں کی جو آواز رہتی، ان کو کھینچنے کا کام کب کرتے؟ یہ کھینچنے والی صفت صرف تین حروفوں کے اندر ہے: الف، واو اور یا۔ ان تین حروفوں کو حروف مد بولتے۔ جب یہ کسی حالت میں رہتے تب یہ کھینچنے کا کام کرتے۔ جیسے الف، اس سے پہلے زبر رہنا، الف جہاں پر بھی آ رہا اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو حرف کی آواز کو ہم کھینچتے، جس کے ساتھ بھی یہ قاعدہ رہتا۔ جیسے با، الف زبر با، تو یہاں پر ہم کھینچنے کا کام کر رہے۔ یہ کتنا کھینچ رہے؟ اس کی مقدار جو ہے وہ ایک الف یا پھر دو حرکت ہے۔ ایک الف برابر ہے دو حرکت کے۔ تو جب بھی مد اصلی یعنی الف مد، سوری، الف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ رہا، اس کو الف مد بولتے۔ تو یہ الف مد کا کنڈیشن جس بھی حرف کے ساتھ آ رہا، یہاں پر با کے ساتھ آ رہا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر با پر ہے، تو با کی آواز کو ہم کھینچتے۔ کتنا کھینچتے؟ اس کو ایک الف یا پھر دو حرکت کھینچ کر پڑھتے۔ تو یہ ایک الف یا دو حرکت کی مقدار کیا ہے؟ ہماری دو بند انگلیاں ہیں، انہیں ایک ایک کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر تک ہم حرف کی آواز کو کھینچتے۔ اسی کو مد کرنا کہتے ہیں۔ مد کا مطلب کھینچنا ہے۔ تو ابھی کوئی حرف ہے سمجھیے جس کے ساتھ یہ قاعدہ الف نہیں ہے، صرف زبر والا حرف ہے، تو یہ ایک ہی حرکت سے پڑھا جاتا، با زبر با، ایسے پڑھا جاتا۔ لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ایک الف آ گیا یہاں پر، تو ایک حرف کے اوپر زبر ہے نا، اور اس کے بعد الف آنا، ایسا کنڈیشن آنا، اس کو الف مدہ بول رہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آنے سے اس کو الف مدہ بول رہے۔ مد کا ایک کنڈیشن ہے، وہ ایک حالت ہے کہ الف بھی آنا اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر رہنا۔ ایسی حالت اگر آ رہی کسی بھی حرف کے ساتھ تو وہ حرف کی آواز کو کھینچتے ہم۔ تو با الف زبر با، ایسے کھینچ کر پڑھتے، ٹھیک ہے، ایک حرکت نہیں، اس کو دو حرکت کرنا، یعنی دو بند انگلیاں ہیں، انہیں ایک ایک کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر تک با یا جس بھی حرف کے ساتھ یہ قاعدہ رہتا کھینچنے والا، اس حرف کی آواز کو کھینچنا رہتا۔ ویسے ہی دوسرا حروف مد واو ہے۔ واو جب ساکن رہتا اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو یہ بھی ایک مد کا کنڈیشن ہے، مد کی حالت ہے، کھینچنے والی حالت ہے۔ تو یہ مد کی کنڈیشن جب آ رہی، اس کو واو مد بولتے۔ واو ساکن سے پہلے جب کسی حرف پر پیش آتا تو وہ واو مد ہو جاتا۔ تو واو مد جس بھی حرف کے ساتھ آ رہا اس کی آواز کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے۔ جیسے با واو پیش بو، دو حرکت کھینچنا ہے، اس کی مقدار بھی دو حرکت ہے، یعنی ایک الف جسے بول رہے اس کا مطلب ہے دو حرکت۔ دو بند انگلیاں ہیں، انہیں کھولنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر تک یہ حرف کی آواز کو آپ کو کھینچنا رہتا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ مد کا کنڈیشن آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ حالت آ گئی جسے مد بول رہے ہم۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش جب کسی حرف کے اوپر آتا تو واو مد کا قاعدہ بنتا۔
वो ये मत जब किसी हर्फ के साथ हो रहा तो उस हर्फ की आवाज को हम खींचते। कितना खींचना है, एक अलिफ या दो हरकत, मतलब दो बंद उंगलियां हैं, एक एक करके खोलने में जितना वक्त लगता उतनी देर तक उस हर्फ की आवाज को खींच कर पढ़ना रहता। बा वो पेश, बू। अगर ये हम वाउ साकिन नहीं रहता था इस हर्फ के साथ, बा के साथ सिर्फ पेश रहता था, तो बा पेश बू एक हरकत से पढ़ते थे उसको, ठीक है, अगर ये नहीं रहता था तो। लेकिन अगर है यहाँ पर वो, जब वाउ साकिन आ जा रहा, वाउ साकिन रहना, सिर्फ वाउ आया तो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वाउ आया तो मद नहीं होता, एक ही हरकत से ये पढ़ा जाता। तो वाउ साकिन रहना, जब वाउ साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर पेश है तो वाउ ए मद का कंडीशन होता। अब ये हर्फ की आवाज, बा की आवाज को आपको दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। इसको वाउ ए मद बोल रहे, ठीक है। जो हर्फ साकिन रहता उसके नाम से ही वो मद का नाम रहता। वो वे मद्दा इसीलिए बोल रहे क्योंकि वो साकिन है। इससे पहले पेश ही रहना, यहाँ पर जबर या जेर आ रही तो ये मद का कंडीशन नहीं होता। तो ये सारे कंडीशंस याद रखना पड़ता कि कौन से हर्फ से साकिन है और उससे पहले वाली हर्फ की हरकत क्या रहना। ऐसे ही तीसरा हुरूफ मद या है। तो या साकिन रहना और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर जेर आ रही, तब भी मद का एक हालत या एक कंडीशन बनती। इसको या ए मद बोलते। जब या साकिन से पहले किसी हर्फ पर जेर आए तो उसे या ए मद्दा बोलते। तो या ए मद्दा भी जब किसी हर्फ के साथ आ रहा तो उसकी आवाज भी दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बा के साथ या ए मद है, भी या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर है, तो अभी बा को आपको दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता। अगर या साकिन नहीं रहता था बा के ऊपर, सिर्फ बा पर जेर रहती थी, या साकिन नहीं रहता था उसके साथ, सपोज यहाँ पर ये नहीं रहता था हर्फ, तो क्या पढ़ते थे, बा जेर बी एक हरकत से पढ़ा जाता था। लेकिन क्योंकि एक या साकिन आ रहा उसके साथ, ठीक है, बा पर जेर, किसी भी हर्फ पर जेर है ना, और उसके साथ एक साकिन या अगर आ रही, तो ये दोनों चीजें मिलकर एक मद का कंडीशन बन रहे, खींचने वाला कंडीशन बन रहे, जिसे या ए मद बोल रहे। ठीक है, साकिन या है इसीलिए या ए मद्दा बोल रहे। तो मद्दा अभी खींच रहे इसीलिए उसे मद्दा बोल रहे। तो ये हर्फ की आवाज किसको खींचना है, ये हर्फ जिसके साथ ये कंडीशन रहता, ये हालत रहती या साकिन से पहले जेर। तो अब बा की आवाज को आपको दो हरकत खींचना पड़ता। तो ये, इनको याद रखने के लिए एक मजमुआ है, ठीक है। नू, ही, हा, इसमें इस कलीमे में तीनों मद्दे असली के कंडीशंस आ गए। जैसे वाउ साकिन से पहले पेश है नून पर, तो ये वाउ ए मद हो गया नून के साथ। या साकिन से पहले जेर है हा पर, तो या ए मद्दा हो गया हा के साथ। और अलिफ से पहले जबर है हा के साथ, तो अलिफ ए मद्दा बन गया हा के ऊपर। तो तीनों मद के कंडीशन सारे इस कलीमे में। तो इस कलीमे को अगर याद रख लिए तो कौन से हर साकिन रहना और उससे पहले क्या हरकत आना ये याद रह जाती। नू, ही, हा, ऐसे याद रख लिए। तो मद असली कब कब हो रहा, अलिफ से पहले जबर आना, ठीक है, ये अलिफ है, उससे पहले जबर आना पहले वाले हर्फ पर। वाव साकिन से पहले पेश आना, वाव ए मद्दा होता। और या साकिन से पहले जेर आई तो या ए मद्दा होता। तो तीनों या ए मद्दा, वाव ए मद्दा और अलिफ ए मद्दा के कंडीशंस जो है एक ही कलीमे में आ रहे, याद रखने के लिए आसानी रहती, इसीलिए उसको यूज कर रहे। इसको छोड़ के दूसरा भी कोई कलीमा है, जैसे उतीना है या कोई और है, तो आप उसे भी याद रख सकते। तो ये हमारा पहला लेसन था जो हम पढ़े थे। इसके बाद जो है हम हमारा दूसरा लेसन पढ़ेंगे, वो है खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश। तो खड़ा जबर एक अलामत है जो हर्फ के ऊपर आती, ठीक है।
कोई हर्फ है, जैसे बा जबर बा, बाजे, सॉरी, बा जबर बा, ऐसा कोई हर्फ है, ठीक है। तो ये जबर वाली अलामत जैसे एक हर्फ के ऊपर ही आती, नीचे नहीं। तो खड़ा जबर एक अलामत है जो हर्फ के ऊपर आती, लेकिन इसका काम कैसा है, जैसे मद्दे असली हम करते, यानी अलिफ से पहले जब जबर आता, ये ओरिजिनल है, ये अलिफ से पहले जबर आना ये ओरिजिनल मद का कंडीशन है। तो खड़ा जबर जब किसी हर्फ के ऊपर आ रहा तो वो ऐसे ही काम करता जैसे मद्दे असली काम करता, ठीक है। यानी अलिफ मद्दा जैसे काम करता, दो हरकत खींचने का काम, और आवाज जो है ऊपर की तरफ जाती, वैसा ही काम करता जब एक हर्फ के ऊपर दाखिल हो रही ये अलामत जिसे खड़ा जबर बोल रहे। तो जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ा जबर आ रहा तो सेम वैसा ही पढ़ना पड़ता जैसे हम मद्दे असली करते, अलिफ मद्दा करते। इसकी मकदार भी जो है वो एक अलिफ या दो हरकत है। जैसे बा खड़ा जबर बा, बा वैसा ही खींचना है जैसे अलिफ मद्दा बा अलिफ जबर बा हम पढ़ते, वैसा इसके ही बराबर है ये, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट है, समझ लीजिए। तो खड़ा जबर जब किसी हर्फ के ऊपर दाखिल हो रहा तो वो बराबर रहता अलिफ मद्दा के, जब एक अलिफ मद किसी हर्फ के साथ रहता। वैसे ही दूसरी अलामत जो है वो खड़ी जेर है, ये हर्फ के नीचे आती। कोई हर्फ है यहाँ पर समझ लीजिए, तो उसके नीचे रहती ये अलामत। लेकिन इसका काम कैसा है, इसका काम वैसा ही है जैसे याए मद का है, ये ओरिजिनल कंडीशन है, या साकिन से पहले जेर आना। तो मुंह के खाली हिस्से से जो हम खींच रहे इसको भी वैसे ही कर रहे, लेकिन ये सिर्फ एक अलामत है, और तहरीर में नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन में है। अलामत देख के हम उसका काम ऐसा ही कर रहे जैसे एक मद्दे असली को हम हमारे मुंह के खाली हिस्से से खींचते, वैसा ही काम कर रहे। तो खड़ी जेर बराबर है याए मद्दा के। जब या साकिन से पहले किसी हर्फ पर जेर आती तो कैसे हम दो हरकत खींच कर पढ़ते, तो खड़ी जेर आने पर भी हम वैसे ही उसको पढ़ते। इसकी मकदार कशिश भी एक अलिफ या दो हरकत है। जब खड़ी जेर किसी हर्फ पर दाखिल हो रही तो उसको भी या मद जैसा पढ़ना पड़ता, जैसे बा या जेर बी हम पढ़ते, वैसे ही बा खड़ी जेर बी पढ़ना है, ठीक है। तो दो उंगलियां खोलने में जितना वक्त लगता उतनी देर ही इसको खींच कर अदा करना पड़ता। तीसरी अलामत जो है वो है उल्टा पेश। उल्टा पेश जो है बराबर है वावे मद के। तो वावे मद जब किसी हर्फ के साथ दाखिल आ रहा, यानी वो साकिन से पहले पेश आ रहा किसी हर्फ पर, तो वो खड़ा उल्टा पेश जो है उसी के बराबर रहता। तो वो मद को हम जैसा खींचते, सेम वैसा ही उल्टा पेश किसी हर्फ पर दाखिल हो रहा, ये अलामत भी हर्फ के ऊपर आती। अगर दाखिल हो रहा हो तो उस हर्फ की आवाज को हमें वैसा ही खींचना पड़ता जैसे हम वावे मद में खींचते। बावो पेश बू जैसे करते, वैसे ही बा उल्टा पेश बू करना है। इसकी मकदार भी दो हरकत या एक अलिफ जिसे बोल रहे वही है। तो बा उल्टा पेश बू बराबर है बावो पेश बू के, ठीक है, इसके बराबर है ये। तो ये सिर्फ एक अलामत रहती, लेकिन हम वो मद जो कर रहे वो ओरिजिनल असली मद ये है हमारा मद असली। तो मद असली ही ओरिजिनल रहता, उसके जैसा हम दूसरे मद जो है वो करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लेसन था जो हम पढ़े थे। तीसरा लेसन जो है वो है हमारा लीन। तो लीन का मतलब है नर्म करना, ठीक है, हमारी आवाज को नर्म करना। ये कायदा भी दो हुरूफों के साथ ही होता, यानी ये एक सिफत है जो सिर्फ दो हुरूफों के अंदर है, वो है या और वाउ, ठीक है। या और वाउ के अंदर ही ये सिफत है, दूसरे हुरूफों के अंदर ये नर्म करने वाली सिफत नहीं है। बट कब होती ये नर्म करने वाली सिफत, कब आती,
हम कब حروفوں کو نرم ادا کرتے، اس کا کنڈیشن ہے، جیسے واو ساکن رہنا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر رہنا، تب جا کے ہم نرم کر کے آوازوں کو پڑھتے، حروفوں کی جس بھی حرف کے ساتھ یہ قاعدہ آتا نرم کرنے والا، تو ہم اس حرف کی آواز کو نرم کر کے ادا کرتے۔ کیا قاعدہ آنا؟ وہ ساکن رہنا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہی رہنا، زیر یا پیش نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، تو واو ساکن ہے، فار ایگزامپل اس کلمے میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یعنی زبر ہے اس کے بعد واو ساکن آ رہا، ایسا ہے یہ قاعدہ، لیکن ہم اسے بولتے الٹا، ایسا ہی پیچھے کی طرف ہی بولتے ہیں اس کو، کہ واو ساکن سے پہلے زبر بول کے، یعنی زبر آ رہا با پر، اس کے بعد ایک واو ساکن آ رہا، ویسا۔ تو واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر جب زبر آتا تو اس کو ہم واو اے لین بولتے، جو حرف ساکن ہے اسی کے نام سے اس کا قاعدہ ہے، لیکن یہاں زبر ہے نا، پیش نہیں۔ مد اصلی میں جو ہم پڑھے تھے، واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو مد اصلی ہوتا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو واو اے لین ہوتا۔ تو جس بھی حرف کے ساتھ یہ آ رہا قاعدہ، ابھی وہ حرف کی آواز کو نرم کرنا، تو کس حرف کے ساتھ آ رہا ہے یہ قاعدہ؟ با کے ساتھ آ رہا، تو با کی آواز کو آپ کو نرم کر کے ادا کرنا پڑتا، با واو زبر، بو، بو، ایسے پڑھنا رہتا، بو، بو، ایسا نہیں پڑھنا ہے، بو، بو، تھوڑی آواز کو اندر لے کے جانا، لے کے آ کے باہر لے کے آنا، ایسا ایک لوپ میں جیسے ہم کرتے ہیں، کرو کے جیسا اس کو کریٹ کرنا آواز کو، بو بول کے، بو بو بول کے ایسا فلیٹ یا نہیں پڑھنا اس کو، وہی نرم ادائیگی رہتی۔ سیم ویسے ہی جب حروف لین دو ہے تو وہ ایک ہے، اور یا بھی دوسرا حرف ہے جس کے ساتھ لین کا قاعدہ بنتا، لیکن اس کا بھی کنڈیشن کیا ہے کہ یا ساکن رہنا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر رہنا، تو یا لین کا قاعدہ بنتا۔ تو جب بھی ایسا قاعدہ کسی حرف کے ساتھ آ رہا تو اس کی حرف کی آواز کو آپ کو نرم کر کے پڑھنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آنے سے لین کا قاعدہ بن رہا، کون سا لین؟ یا لین، کیونکہ یا ساکن ہے یہاں پر، تو لین میں زبر رہتا اور مد اصلی میں زیر رہتا، یا ساکن سے پہلے زیر آتی تو کھینچتے ہم، تو زبر آیا تو نرم کر کے پڑھتے، تو ابھی یہاں پر زبر آ رہا تو لین کا قاعدہ بن رہا، تو لین کرنا مطلب یعنی وہ حرف جس کے ساتھ یہ قاعدہ رہتا اس کو نرم ادا کرنا رہتا، جیسے یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے با پر، تو با پر ابھی لین کا قاعدہ بن رہا، با کی آواز کو نرم اور جلد ادا کرنا رہتا، با یا زبر، بئی، بئی پڑھنا ہے۔ تو لین کی مقدار جو ہے وہ ایک اور دو حرکت کے درمیان والی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو حرکت مد اصلی جیسا دو حرکت نہیں کھینچتے ہم، اس میں کھینچنا کا کام نہیں کرتے، اس کو نرم اور جلد ادا کرتے، دو حرکت سے کم ہے لیکن ایک حرکت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حرکت سے زیادہ ہے اس کی مقدار لین کی، لیکن دو حرکت سے تھوڑا کم رہتی، تو مد اصلی جتنی نہیں کھینچتے ہم، تھوڑا ہلکا سا کھینچتے، زیادہ نہیں، مد تو نہیں کرتے دو حرکت والا، تو نرم کرتے اور جلد ادا کرتے لین والے حرف کو، جس بھی حرف کے ساتھ لین کا قاعدہ رہتا اس کو نرم اور جلد ادا کرنا رہتا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں لام اسم جلالہ۔ لام اسم جلالہ یعنی ایسا لام جو لفظ اللہ یا پھر اللہم میں ہے، تو یہ دو لفظ کو دیکھنا پڑتا جب بھی آپ تلاوت کر رہے، جہاں پر بھی یہ کلمے آ رہے، یعنی یہ لفظ آ رہا اللہ، لفظ اللہ یا پھر لفظ اللہم۔ ٹھیک ہے، ان میں جو لام ہے یہ جس پر تشدید اور کھڑا زبر ہی رہتی، اس پر زیر یا پیش نہیں آتے اس پر، ٹھیک ہے، تشدید اور کھڑا زبر جو دکھ رہا، یہ ریڈ کلر میں جو ہائی لائٹڈ دکھ رہا لام، اس لام کو لام اسم جلالہ، یعنی اللہ کو جو پکارنے کے لیے جو نام استعمال کر رہے ہم، جو اللہ کے لیے استعمال کر رہے، وہ لفظ جو ہے اللہ یا اللہم، یہ اسپیشل نام ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ریفر کرنے کے لیے،
تو اس میں جو لام ہے یہ بیچ والا، ٹھیک ہے، یہ لام، لام اس میں جلالہ بول رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لفظ اللہ یا اللہم کا لام. تو اس لام کو پڑھنے کے کچھ قاعدے ہیں. یہ لام جو ہے یا تو موٹا پڑھا جاتا، جسے مفخم یا تفخیم بھی بولتے، یا پھر یہ لام جو ہے باریک بھی پڑھا جاتا، جسے مرقق یا پھر ترقیق بولتے. تو کب یہ لام اس میں جلالہ موٹا پڑھا جاتا؟ جب لام اس میں جلالہ سے پہلے والا حرف جو رہتا، کوئی بھی حرف اس سے پہلے والا جو متحرک ہے، وہ یہ لام بھی رہ سکتا اس سے پہلے والا جو دکھ رہا، یا یہ حمزہ، حمزۃ الوصل بھی رہ سکتا، ٹھیک ہے، جو بھی متحرک ہے امیڈیٹلی اس سے پہلے والا، اس پر حرکت کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اگر اس سے پہلے والے متحرک یعنی ایسا حرف جس کے اوپر حرکت ہے، تو متحرک حرف جو رہتا اس سے پہلے والا، اس پر اگر حرکت زبر یا پھر حرکت پیش آ رہی، تو لام اس میں جلالہ موٹا پڑا جاتا. ٹھیک ہے، چاہے وہ لفظ اللہ میں ہو یا اللہما میں ہو. جیسے یہاں پر یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے والا حرف یہ حرکت والا ہے، تو اس پر حرکت زبر ہے، تو اس لام کو ابھی موٹا پڑھنا رہتا. موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جو جڑ رہتی اس کو ہلکا سا تالو کی طرف اٹھانا رہتا، تو تب جا کے وہ موٹی آواز آتی، یعنی موٹی ادائیگی ہوتی اس لام کی، لام اس میں جلالہ کی. اللہ، هو اللہ، انا اللہ. ٹھیک ہے، تو ایسی ادائیگی رہتی، ہلکی سی زبان کی جڑ کو اٹھانا رہتا، دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا. زبان کی جڑ یعنی ہماری زبان کا حصہ جو ہمارے حلق میں لگا رہتا، جو پیچھے کی طرف حلق کے نزدیک رہتا. نوک یعنی سامنے کی نوک ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ جا کے اوپر کے دانتوں کے بسوڑوں کو لگتی، وہیں پہ لگانا رہتا. ٹھیک ہے، نوک کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے. جڑ جو رہتی یعنی پیچھے کا حصہ، جہاں ہمارا حلق شروع ہو رہا، وہاں پر جو زبان کا حصہ ہے ہمارا، تو وہاں سے ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھانا رہتا لام اس میں جلالہ کو موٹا پڑھنے کے لیے. تو لام اس میں جلالہ ان کلمات میں، لام اس میں جلالہ یہ ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو متحرک ہے وہ یہ ہے، اس پر پیش ہے، تو پیش آنے پر بھی لام اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھتے. ان کلمات میں لام اس میں جلالہ لفظ اللہما میں آ رہا، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پھر پیش آ رہا، تو ان کلمات میں بھی ہم لام اس میں جلالہ کو موٹا ادا کرتے. تو لام اس میں جلالہ موٹا ادا ہوتا جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پھر پیش آئے. تو اگر لام اس میں جلالہ سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہا، تو لام اس میں جلالہ کو باریک ادا کرنا. باریک ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا رہتا، جیسا ہم پڑھتے ہیں نارمل لام ویسا ہی پڑھنا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگتی، جڑ نہیں اڑتی، اڑتی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو نارمل فلیٹ رکھ کے جیسی ہے وہ ویسی حالت میں ہی اس کو پڑھنا، کچھ نہیں کرنا رہتا. جیسے یہاں پر یہ لام اس میں جلالہ یہ ہے لفظ اللہ میں، اور اس سے پہلے والا حرف جو متحرک ہے وہ یہاں پر ہے، میم پر زیر ہے، اور زیر آنے کی وجہ سے اس لام کو ہم باریک پڑھ رہے. بسم اللہ، امر اللہ، وللہ، قل اللہم. ٹھیک ہے، تو زیر آ رہی لام اس میں جلالہ سے پہلے والے حرف پر، تو اس لام کو، جسے لام اس میں جلالہ بول رہے، جس پر تشدید اور کھڑا زبر ہے، اس کو ہم باریک پڑھ رہے. تو لام اس میں جلالہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ رہا تو اسے موٹا پڑھتے، پیش آیا تو بھی موٹا پڑھتے، زیر آ رہی تو اس کو باریک پڑھتے. نیکسٹ ہم دیکھیں حروف مستعلیہ کیا ہے. حروف مستعلیہ یعنی ایسے حروف جو بہت زیادہ موٹے اور بلند ادا ہوتے. ٹھیک ہے، موٹے اور بلند ادا ہونے والے، جیسے یہ ایک دکھ رہا ہے یہاں پر، ایک موٹی چیز ہے اور بہت زیادہ بلند دکھ رہی، تو ویسا موٹے اور بلند ادا ہونے والے حرف جو ہے ان کو حروف مستعلیہ بولتے. تو یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ صرف 7 حروف ہیں پورے حروف تہجی یا ہجا میں جو ہے، الف سے لے کر یا تک جو ہے، ان میں سے صرف 7 حروف جو ہے
ان کو حروف مستعلیہ بول رہے. یعنی جب ہم ان کو ادا کر رہے، چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ان کو ہم موٹا یا مفخم یا تفخیم سے ادا کرتے. تو یہ کون سے حروف ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. ٹھیک ہے، تو یہ 7 حروف ہیں جن کو ہم ہر حالت میں، یعنی ان پر زبر آیا، زیر آیا، پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے ان کے اوپر، تو ان کو موٹا ہی ادا کرنا. تو موٹا ادا کرنے کے لیے کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، موٹے اور بلند ادا ہوتے بولی میں. تو موٹے اور بلند کیسے ادا ہوتے؟ زبان کی جو جڑ رہتی ہماری، ان کو ادا کرتے وقت ان حروفوں کو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف ایسے اٹھانا ہے. تو یہ سائیڈ ویو ہے ہمارے چہرے کا اور حلق کا، جس میں یہ ریڈ کلر کی جو دکھ رہی جوٹری، وہ زبان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے منہ کی تالو ہے، اوپر کی تالو، اور یہ دانت ہے یہاں پر. تو یہاں پر جو دکھ رہا کہ جب ہم ادا کر رہے حروف مستعلیہ کو، تو جڑ کو اٹھانا رہتا. جڑ کو اگر اٹھائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آواز جو ہے، یہ جو دکھ رہی ہے ایروز سے جو دکھ رہی ہماری آواز ہے، منہ کے اندر جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، ایسی آ رہی تھی وہ، بٹ یہ جڑ اٹھانے کی وجہ سے کیا ہو رہا، وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، ایسے پوائنٹ کر رہی ہے اوپر ڈائریکشن میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا، آواز کی میں کے اندر بلندی آ جاتی. ٹھیک ہے، تو آواز بلند ہوتی تھوڑی سی. تو ویسا کرنا رہتا جب ہم حروف مستعلیہ کو پڑھ رہے. تو زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھانا، ہلکی سی، چپکانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہلکا اٹھانا رہتا آواز کو بلند کرنے کے لیے. یہ نوک ہے سامنے کی طرف جو دکھ رہی، وہ نوک ہے جو دانتوں کے پاس ہے. یہ نوک ہے، یہ دانت ہے، یہ ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بس جڑ کو ہلکا سا اٹھائے تو حرف جو ہے وہ موٹا اور بلند ادا ہوتا. ان کو یاد رکھنے کے لیے مجموعہ ہے، یعنی ایک کلیمے ہے، کلمات ہے یہ، جن کو عربی کے ہے، جن کو پڑھنے سے مطلب یہ پورے حروف آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو آپ ان کو یاد رکھنے کے لیے آسانی رہتی کہ کون کون سے حرف ہیں. خص، ضغطن، قذ، ایسا مجموعہ ہے اس کا، جس میں خو ہے، صاد ہے، ضاد ہے، غین ہے، طا ہے، قاف ہے اور ظا ہے. پورے 7 حروف جو ہیں جن کو حروف مستعلیہ بول رہے، ان کو یاد رکھنے کے لیے آسانی سے یہ مجموعہ اگر یاد رکھ لیے، خص، ضغطن، قذ بول کے یاد رکھے. موٹا ہی پڑھنا یاد رکھنے کے وقت بھی، تو تب جا کے وہ آسانی سے یاد رہتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے. موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جو جڑ رہتی، اس کو تالو کی طرف اٹھانا رہتا. جیسے یہ کلمہ ہے یہاں پر، اس میں حرف یہ خوا جو ہے، یہ حروف مستعلیہ خصو ضغطن قذ میں سے ایک ہے. تو ابھی اس کو موٹا پڑھنا رہتا. خالدین، خو خو خو، ایسی آواز ہے نا. ہم جڑ اٹھائے تو ویسی آتی، جڑ نہیں اٹھائے تو خالدین ہوتا. زبان کی جڑ ہے، یہ نوک ہے سمجھیے، اور پیچھے کا حصہ یہ ہے جڑ. ٹھیک ہے، تو جڑ کو ہلکا سا اٹھائے تالو کی طرف تو خو، ایسی آواز آتی ہے. اگر جڑ کو نہیں اٹھائے، خا، ایسی آتی ہے. ٹھیک ہے، خا خو، خا خو. تو ڈفرینس ہے اس میں، ہلکا سا ڈفرینس سننے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ موٹا ہے کہ باریک ہے. تو ویسا موٹاپا لے کے آنا پڑتا آواز میں جب حروف مستعلیہ کو پڑھ رہے. تو بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہے ان کی نہیں ہو رہی ہے ادائیگی، صحیح نہیں ہو رہی. تو اس کی پریکٹس کرنا، گھر میں پریکٹس کرنا اس کی، انشاءاللہ وہ اور بہتر ہوتے جاتا ڈے بائی ڈے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی اگر ایک اور کلمہ ہے یہاں پر، الصلاتی. ٹھیک ہے، اس میں صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے. ابھی اس کو موٹا پڑھنا رہتا، سیم ویسا ہی زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھانا، تو یہ موٹا ادا ہوتا. نہیں تو سین جیسا ساؤنڈ کرتا ہے، یہ سین جیسا، الصلاتی سین جیسا ساؤنڈ کر رہا ہے، تو وہ غلط ہے. اس، اس. ٹھیک ہے، یہ باریک اور موٹے میں ڈفرینس یہ ہے. ابھی میں سین پڑھی سپوز، اس، ایسی آتی ہے آواز. ٹھیک ہے، فلیٹ رکھی میں زبان، کچھ بھی نہیں کری اس کے ساتھ، اٹھائی نہیں جڑ. ابھی اس کو موٹا کرنا ہے، اوس، 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 ایسے موٹی ہوتی ہے آواز. تو موٹی کرنا رہتا، مطلب زبان کی جڑ کو ہلکی سی اٹھانا تالو کی طرف، تب جا کے وہ حرف جو ہے موٹا ساؤنڈ کرتا، نہیں تو وہ باریک ہی ساؤنڈ کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس رہتا ہے اس میں.
सेम वैसे ही गौलीबू, गईन हरूफ मुस्तालिया है, इसको मोटा पढ़ना रहता है। गौलीबू बोला, गालिबू, गालिबू ऐसा नहीं, ठीक है। मखरज से ही अदा करते, बट सिफत जो है उसकी मोटापा लेके आना उसके अंदर, वो सिफत है मुस्तालिया, तो वो सिफत को सही अदा नहीं करते। गौलीबू नहीं होता वो, गालिबू ऐसा पढ़ते, ठीक है। गौलीबू, गौलीबू मोटा, मोटापा लेके आना उसके अंदर, जुबान की जड़ उठा के। गालिबू ये सही तरीका है, गालिबू ये गलत है, ठीक है, ऐसा पढ़ना गलत है। सेम वैसे ये पॉलीबू, पॉलीबू जड़ उठाए तो मोटा साउंड होता पॉ, जड़ नहीं उठाए तालीबू, ता साउंड होता है, ये तो ता जैसा दो दुखते वाला जो ता रहता वैसा साउंड करता। तो आवाज में जो मोटापा अगर नहीं लेके आए तो हर्फ बदल जाता और उसके मायने भी बदल जाते। तो नेक्स्ट जो है हम देखें, वो था गुन्ने का कायदा। तो गुन्ने का मतलब क्या है? नाक में आवाज को ले जाने को गुन्ना करना कहते हैं, ठीक है। नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना करना कहते हैं। ये भी एक सिफत है जो सिर्फ दो हुरूफों के अंदर है, वो है नून और मीम। जब इनको पढ़ रहे हम, चाहे वो किसी भी हालत में हो, ठीक है, अलग अलग किस्म का, अलग अलग मरातिब का गुन्ना होता, चाहे इस पर जबर हो, जेर हो, या पेश हो, सुकून हो, ठीक है, या कोई भी हरकत हो इनके ऊपर, तो इन पर गुन्ना होता ही होता, क्योंकि इनके अंदर ये सिफत है, इन हुरूफों के अंदर ये क्वालिटी है, हल्का गुन्ना हो जाता। बट इनके ऊपर जब तशदीद आती, इनके ऊपर जब तशदीद रहती तो शिद्दत से गुन्ना करना पड़ता दो हरकत तक, ठीक है। दो हरकत तक आपको नाक से आवाज लेके जाना, हुन्ने का मतलब नाक से आवाज निकालना ही है। जो भी ये हर्फ की आवाज निकाल रहे हैं हम, नून की या मीम की, तो वो आवाज जब हम नाक से निकालते पूरी, तो वो गुन्ना है। तो नाक में आवाज को ले जाना या नाक में आवाज को घुमाना गुन्ना कहलाता। शिद्दत से कब होता, दो हरकत तक कब होता, जब उनके ऊपर तशदीद आ रही तो, ठीक है, जब ये मुशद्दद रहते ये दो हर्फ, तो शिद्दत सख्ती के साथ नाक से दो हरकत तक आवाज निकालना पड़ता। दो हरकत मतलब आपकी दो बंद उंगलियां हैं, उनको खोलने में जो टाइम लगता है, एक एक करके खोलना एक एक उंगली, जितना टाइम लग रहा उतनी देर तक नाक से आवाज को निकालना रहता। जैसे यहाँ पर मीम को पढ़ रहे हम, मिम्मा ये कलीमा है, तो ये मीम मुशद्दद है, ये मीम जेर वाली है, तो ये मीम जेर वाली मीम पर भी हल्का सा गुन्ना गुन्ना होता। हम मीम जेर मी पढ़ने से हल्की सी नाक में आवाज जाती। लेकिन मीम मुशद्दद यानी तशदीद वाली मीम जब आती, तो शिद्दत से, बहुत ज्यादा शिद्दत से नाक से आवाज को निकालना, दो हरकत तक निकालना रहता उसको, ठीक है। मिम्मा, मिम्मा ऐसे निकालना रहता। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर होंठों से अदा होता मीम, दोनों होंठ जब टच हो रहे तो आवाज जो है यहाँ से जाके सीधा नाक से आ रही। कितनी देर तक निकालना, वो दो हरकत तक निकालना, दो उंगलियां खोले जितना टाइम लगता उतनी देर निकालना। मिम्मा, होंठ जैसे ही लगते आवाज यहाँ से नाक में से आना शुरू होती, तो वो आवाज जो आ रही उसको दो हरकत तक निकालना पड़ता नाक से, ठीक है। सेम वैसे ही नून मुशद्दद को जब हम पढ़ते, तो नून जो है हमारे जुबान की नोक ऊपर के दांतों के मसूड़ों को यहाँ पर लगना है, ऊपर के दांतों के मसूड़ों को लगने से नून अदा होता। तो नून मुशद्दद जब हम पढ़ रहे, तशदीद वाला नून जब पढ़ते रहते, तो यहाँ पर जैसे ही लग रही आवाज ऐसे आ रही, देखिए ये बाहर की तरफ जा रही, ठीक है। तो कितनी देर करना हो, दो हरकत तक करना है। इन्ना जैसे ही जुबान यहाँ लगती, वो आवाज पूरी नाक से निकालना रहता दो हरकत तक, ठीक है। दो उंगलियां खोलने में जितना वक्त लगता उतनी देर तक वो आवाज को निकालना रहता। इन्ना ऐसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना हुन्ने के पढ़ रहे, इन्ना ऐसा पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़ने का नहीं है, वो तरीका नहीं है उसका, हुन्ना करना पड़ता लाजमी तौर से। जैसे यहाँ पर है मीम मुशद्दद आ रहा, सुम्मा, पहले इसको मिलाते वक्त तामीम पेश, तुम,
ठीक है। मीम जबर मा, सुम्मा, जब हम इसको मिला रहे तो तब हम गुन्ना कर रहे, सा मीम पेश, सुम, मीम जबर मा, सुम्मा। तो यहाँ पर दो हरकत गुन्ना करना रहता। दो उंगलियां खोलने में जितना टाइम लग रहा, वो यहाँ पर मीम मीम को सा से मिलाते वक्त करना। उसके बाद जो है मीम जबर मा पढ़ना रहता, सुम्मा, ऐसे। ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर नून मुशद्दद है। जब हम काफ के साथ मिला रहे हैं उसको, तो तब हमें गुन्ना करना पड़ता। ता पेश तू, का, काफ नून जेर किन, ऐसे आवाज को नाक में ले जाना। तू किन, नून जबर ना, तू किन ना, ऐसे पढ़ना रहता। तो जो भी आवाज मैं किन बल्कि जो दो हरकत तक निकाल रही थी, वो नाक से आ रही पूरी। अगर नाक बंद कर दिए तो वो आवाज भी बंद हो जाना। तो ये है हमारा होने का लेसन। इसके बाद जो है हम अलिफ और हमजा के बारे में देखें। अलिफ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अलिफ जो रहता वो हमेशा खाली रहता, और उमूमन जो है एक जबर वाले हर्फ के बाद ही आता। कलीमे के शुरू में कभी नहीं आता, या तो दरमियान में आता या फिर आखिर में आता। ठीक है। और सिर्फ आवाज के खींचने के लिए इस्तेमाल होता। जब भी हम अलिफ को लिख रहे, तो वो सिर्फ मद असली करने के लिए ही इस्तेमाल होता, मद करने के लिए, दूसरे कामों के लिए नहीं। तो दूसरी जगह हम उसे पढ़ते ही नहीं, अगर मद असली का काम नहीं है तो। यानी जब एक जबर वाले हर्फ के साथ आ रहा अलिफ, तभी हम उसे इस्तेमाल करते, पीछे वाले हर्फ से मिलाते। बा अलिफ जबर बा, तो मद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। अगर यहाँ पर जेर आती थी तो इसको पढ़ते ही नहीं हम। ठीक है। तो पेश आया तो भी नहीं पढ़ते उसको। तो वैसा होता कि अलिफ से पहले अगर जबर आ रहा तो तभी हम अलिफ को जो है इस्तेमाल करते। तो कलीमे के शुरू में कभी नहीं आता अलिफ, या तो दरमियान में आता या फिर आखिर में आता। तो यहाँ पर जो दिख रहा ये जो है ये अलिफ है। ठीक है। तो अलिफ हमेशा खाली रहता, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं रहती। अगर हरकत है तो वो अलिफ नहीं रहता। तो यहाँ पर जो दिख रहा, पहला ये हर्फ जो दिख रहा, ठीक है, तो ये अलिफ नहीं है। क्योंकि अलिफ कलीमे के शुरू में कभी नहीं आता। दरमियान में आ रहा तो वो अलिफ रहता, आखिर में आ रहा तो वो अलिफ रह सकता। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये बीच में आ रहा, और उससे पहले वाले हर्फ पर एक जबर है, तो ये एक अलिफ है। और आवाज के खींचने के लिए, इस हर्फ की आवाज के खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहा, कौफ अलिफ जबर कौ, खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहा, तो वो पक्का अलिफ है। ठीक है। तो अभी ये अलिफ है। नेक्स्ट। यहाँ पर भी जो दिख रहे, ये जो दिख रहा कलीमे के शुरू में आ रहा, तो ये अलिफ नहीं है, अलिफ जैसा ही दिख रहा, वो अलिफ नहीं है क्योंकि कलीमे के शुरू में आ रहा, और उस पर हरकत भी है। ठीक है। अगर हरकत नहीं भी है, अगर कलीमे के शुरू में आ रहा, तो वो अलिफ नहीं रहता, बिकॉज अलिफ जो है कलीमे के शुरू में नहीं आता। यहाँ पर भी एक दिख रहा अलिफ जैसी लाइन, और उस पर भी एक हरकत है। तो अलिफ खाली रहता, हरकत नहीं रहती उसके ऊपर। तो ये अलिफ नहीं है। तो इसके बाद ये एक और दिख रहा है यहाँ पर, ये अलिफ रह सकता, और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है, तो ये पक्का अलिफ है अभी। और वो खींचने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा, सीन अलिफ जबर सा ही पढ़ते हैं हम इसको, अल इंसाना। ठीक है। इंसाना ऐसा पढ़ रहे, खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहा आवाज की, तो ये अलिफ है। तो ये अलिफ रहता। सेम वैसे ही यहाँ पर इस कलीमे में यहाँ पर दूसरे कोई भी अलिफ नहीं है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है, और इसकी आवाज को हम खींच रहे भी, वत वा सौ, वत वा सौ, वा वा खींच रहे आवाज को, तो वो अलिफ है। तो अलिफ से पहले जबर आने से मद्दे असली हो रहा, इसलिए खींचे जा रहा, आवाज खींची जा रही हर्फ की, तो वो अलिफ ही रहता। ठीक है। अगर अलिफ खाली नहीं है,
اگر ایک الف جیسی اسٹینڈنگ لائن دکھ رہی اور اگر وہ خالی نہیں ہے تو وہ حمزہ رہتا، اس کو ہم حمزہ بولتے، الف نہیں، ایک الف جیسی دکھ رہی لائن، ٹھیک ہے، ایسی جو الف جیسی دکھ رہی تھی، حرف جو ہے الف جیسا دکھ رہا، اس کے اوپر کچھ حرکت ہے سمجھ لیجئے، تو پکا وہ الف نہیں ہے۔ حرکت جب آ جا رہی کسی الف جیسی لائن کے اوپر، تو الف جیسے حرف کے اوپر، تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہی ہے۔ تو حمزہ کے اوپر یہ سارے الف جو دکھ رہے، ان کے اوپر جو حرکتیں آ جا رہی ہیں، یہاں پر زبر زیر پیش یا پھر سکون، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جا رہے، تو یہ سارے الف نہیں ہوتے، ان کو حمزہ بولنا پڑتا۔ حمزہ جو ہے کلمے کے شروع میں بھی آتے، درمیان میں بھی آتے اور آخر میں بھی آتے۔ الف جو ہے وہ شروع میں نہیں آتا، بٹ حمزہ کہیں پر بھی آ سکتا۔ جیسے یہاں پر یہ کلمے کے شروع میں دکھ رہا، تو کلمے کے شروع میں کیا یہ الف رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ الف جو ہے کلمے کے شروع میں نہیں آتا، تو یہ حمزہ ہے، اور اس کے اوپر حرکت بھی ہے۔ اگر حرکت نہیں بھی رہتی تھی، ایسے لکھتے تھے اس کو الحمد بول کے، ٹھیک ہے، بنا حرکت کے، تو بھی یہ حمزہ ہی ہے، کیونکہ الف کلمے کے شروع میں نہیں آتا، تو یہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر حرکت لکھ کر دے دیے، اگر حرکت نہیں بھی لکھے تو بھی وہ حمزہ ہی ہے۔ تو کلمے کے شروع میں آ رہا تو یہ حمزہ ہے، اور اس پر حرکت بھی ہے یہاں پر، تو یہ حمزہ پکا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، الحمد۔ سیم ویسے ہی یہاں پر واو کی شکل والا یہ حمزہ ہے، یہ بھی ایک حمزہ ہے، اور سکون ہے اس کے اوپر، تو پیچھے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھتے ہیں اس کو، تو وہ بھی ایک حمزہ ہے، ایک ٹائپ کا، اس کی ایک شکل ہے حمزہ کی۔ یہاں پر جو دکھ رہا یہ حمزہ ہے، جو عین کی شکل والا دکھ رہا یہ حمزہ ہے، لیکن اس سے پہلے والا یہ حرف جو دکھ رہا یہ الف ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور کھینچنے کے لیے استعمال ہو رہا شا، شا، شین کی آواز کھینچ رہے ہم، الف سے پہلے زبر آنے سے مد اصلی ہو رہا، کھینچ رہے تو وہ الف ہے، حمزہ نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حمزہ جو ہے، ان کی کچھ شکلیں ہیں، الگ الگ شکل میں آتا حمزہ، جیسے یہ الف کی شکل والا حمزہ ہے، یہ تینوں، اور یہ عین کی سر کی شکل والا عین حرف جو ہے، اس کا اوپر کا جو حصہ ہے، اتنا اتنا کٹ کر دیے ہم تو سر اس کا جو ہے ہیڈ پارٹ ویسا ہی دکھ رہا ہے، یہ تو عین کی سر کی شکل والا حمزہ بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ بھی حمزہ آتے ایسے بھی، وہ بھی حمزہ ہی ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے، یا کی شکل والا، ایک یا کے اوپر جب حمزہ بیٹھتا تو اس کو بھی ہم حمزہ ہی بولتے، یا کی شکل والا حمزہ بولتے ہیں اس کو۔ سیم ویسے ہی یہ واو کی شکل والا حمزہ ہے، واو کے اوپر جب ایک حمزہ ڈالتے تو وہ حمزہ بولتے ہیں اس کو، واو نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے سارے جو حمزہ جو دکھ رہے ہیں یہاں پر، ان کی شکلیں جو ہے الگ الگ، بٹ ان کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی حرف ہے، یہ سیم حرف کو الگ الگ شکل میں لکھ رہے ہیں۔ جب یہ حمزہ ساکن رہتے تو ہم جھٹکے سے ادا کرتے، جیسے یہ الف جیسا جو دکھ رہا، اس کے اوپر ایک علامت جب آ جا رہی ہے الف کے اوپر، تو وہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، صرف خالی ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا تو تب جا کے وہ الف رہتا، نہیں تو اس پہ کچھ تو حرکت آ جا رہی ہے، ایسے کچھ بھی حرکت آ جا رہی، زبر زیر پیش کھڑی زیر، کچھ بھی حرکت آ رہی تو وہ حمزہ رہتا، الف نہیں رہتا۔ جب حمزہ ساکن رہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ الف کے اوپر ایک علامت دکھ رہی ہے یہاں پر، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ جب ساکن رہتا تو جھٹکا لگانا پڑتا، حمزہ جو ہے ہمارے حلق کے نیچے کے حصے سے ادا ہوتا، جہاں پر ہمارا حلق اور ہمارا سینہ ملتا، اس جگہ پر جو ہے حمزہ کا مخرج رہتا، وہاں سے حمزہ ادا ہوتا۔ جب ہم حمزہ ساکن کو ادا کر رہے تو ہلکا جھٹکا لگانا، یعنی حلق کا اندر کا حصہ شدت سے بند کرنا، تاکہ جھٹکے جیسی آواز لگے، ویسا ادا کرنا رہتا۔ تو یہ سارے حمزہ ہی ہے جو دکھ رہے ہیں یہاں پر، جو ساکن ہے یہاں پر فی الحال، تو یہ بھی عین کی سر کی شکل والا حمزہ ساکن ہے، یا کی شکل والا حمزہ ساکن ہے، واو کی شکل والا حمزہ ساکن ہے، یہ سارے حمزہ ساکن ہے، ان کو ادا کرتے وقت ہلکا جھٹکا لگانا ہمارے حلق کے اندر۔ جیسے یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں، ان میں سے ایک دو پڑھتی ہوں میں۔ آ، جیسے یہاں پر یہ پہلا والا ہے،
लाम जबर ला, ता हमजा जबर ता, ता, ऐसे झटका लगाना है ता। हवा को रोक देना, आवाज को रोक देना, उससे झटका लगता। शिद्दत से पढ़ना थोड़ा सा, ता बोल के, ता, ता, मद नहीं करना है उसके ऊपर, ता बोल के। ठीक है, लता, लाम जबर ला, ता हमजा जबर ता, लता, वाव जबर वा, सीन हमजा जबर सा, व सा, बा हमजा जबर बा, सीन जबर सा, ब सा, हमजा कौफ जेर इको, را हमजा जबर र, इको र, वाव जबर व, ता हमजा जबर त, व त, नून हमजा जबर न, ता जेर ती, न, ती। ठीक है, तो बहरहाल जहां भी हमजा साकिन आ रहे उन पर झटके से अदा करना पड़ता है उनको। ये हमजा जो है इसके दो, इसके कुछ अकसाम हैं। हमजा जो पढ़े हैं अभी हम, कि हमजा जो है एक अ, अलिफ जैसा दिखता है या फिर उसकी दूसरी भी शक्लें हैं। लेकिन हमजा जो है कलीमे के शुरू में आता है या दरमियान में आता है या आखिर में आता, इसके कुछ अकसाम हैं। ठीक है, हमजा के मेनली दो अकसाम हैं, दो टाइप के हमजा रहते। एक है हमजा या क़ुतई, एक है हमजा क़ुतई और दूसरा है हमजतुल वस्ल। तो हमजा या क़ुतई यानी ऐसा हमजा जो हर हालत में बाखी रह जाता, यानी कि आप इब्तिदा कर रहे उस हमजा से पढ़ना शुरू कर रहे। ठीक है, कोई कलीमा है जो या तो आयत के शुरू में आ रहा या दरमियान में आ रहा, कहीं पर भी आ रहा, आप सपोज वहां से पढ़ना शुरू कर रहे, जिसे इब्तिदा बोलते। इब्तिदा कहाँ से भी कर सकते, या तो आयत के शुरू में या दरमियान में, जब हम तिलावत कर रहे तब उसके बारे में बात कर रही हूँ। जब हम शुरू कर रहे तिलावत, शुरू से पढ़ रहे, तो कली एक आयत के शुरू से ही हम इब्तिदा करते। बीच में जाके कहीं पर रुक गए तो पीछे से फिर अगर कोई अलामत नहीं है वहां पर, पीछे से ये आदा करते। तो पीछे से मिलाते वक्त भी जब हम इब्तिदा कर रहे, जब फिर से मिलाने के लिए फिर से शुरू कर रहे, तो वो भी इब्तिदा ही है। ठीक है, तो चाहे आप आयत के पढ़ना शुरू करते वक्त आयत के शुरू से करो, या फिर कहीं पढ़ते पढ़ते बीच में रुक गए और पीछे से मिलाते वक्त भी अगर शुरू कर रहे फिर से पढ़ना कहीं से, तो जहां पर भी अगर आ रहा हमजा, अगर वो पढ़ा जा रहा इब्तिदा के वक्त, ठीक है, उसके साथ साथ जब हम किसी हमजा को एक कलीमे के शुरू में हमजा आ रहा, और दूसरे, सॉरी, एक कलीमा पढ़ रहे हम, उसके आगे वाला कलीमा जो रहता बाद वाला कलीमा, पहला एक कलीमा है समझिए और दूसरा ये कलीमा है। जब हम पढ़ते जा रहे पहले कलीमे को जब हम दूसरे कलीमे से मिला के पढ़ते, जिसे वस्ल करना बोलते। ठीक है, मिलाकर पढ़ना एक सांस में वस्ल करना कहलाता। तो जब हम कलीमात को मिलाकर पढ़ रहे, कहीं पर बीच में हमजा आ रहा, अगर हम उसको पढ़ रहे, ठीक है, तो वस्ल की हालत में जब एक हमजा पढ़ा जा रहा और इब्तिदा की हालत में भी वो हमजा पढ़ा जा रहा, और वक्फ भी अगर कर रहे हैं आप जाके किसी हमजा पर तब भी वो पढ़ा जा रहा, तो वैसा हमजा जो हर हालत में पढ़ा जा रहा, वस्ल इब्तिदा हर हालत में वो पढ़ा जा रहा, यानी बाकी रह जा रहा, हम उसे गिरा रहे नहीं, तो बिना पढ़े हम छोड़कर आगे नहीं कंटिन्यू कर रहे उसको, तो वैसा हमजा जो हर हालत में बाकी रह जा रहा, वस्ल की हालत में भी और इब्तिदा की हालत में भी, वैसे हमजा को हमजा क़ुतई कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमजा जो हर हालत में बाकी रह जाता उसे हमजा क़ुतई बोलते हैं।
जैसे यहाँ पर ये कलीमे के शुरू में जो दिख रहा है ये हमजा हर हालत में पढ़ा जाता है, चाहे इसे पीछे के हाँ कोई कलीमा है इससे उससे भी मिलाकर पढ़े। फुसकुम, तो फुसकुम इसको जब हम पढ़ रहे तो पीछे से मिलाए तो भी इसको पढ़ना पड़ता। इसको छोड़ के हम पीछे वाले हर्फ से या कलीमे से फुसकुम ऐसा नहीं पढ़ते। सपोज यहाँ पर वाउ रहता था तो फुसकुम ऐसा नहीं पढ़ते, फुसकुम ही पढ़ते। हमजा पढ़ना ही पढ़ना पड़ता, नहीं तो ये कलीमे के मायने नहीं बनते। तो वैसे ही अगर कोई कलीमा या हर्फ है यहाँ पर वह तुम ही पढ़ते, ये हमजा पढ़ा ही जाता, इसको पढ़ना ही पड़ता। बिन उसको छोड़ के हम पीछे वाले कलीमे को नून से मिलाकर वंग तुम ऐसा नहीं पढ़ते। ठीक है, वह तुम ऐसा ही पढ़ना पड़ता, ये हमजा को पढ़ना ही पढ़ना पड़ता। सेम वैसे ही इला एक कलीमा है यहाँ पर, इसका हमजा भी जो है ये भी हमजा या क़ुताई है, हर हालत में बाकी रहता है ये। अगर इससे पहले वाऊ भी लगा दी मैं यहाँ पर व इला, इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता। तो वसल करो या इब्तिदा करो, यहीं से पढ़ना शुरू भी करी मैं अब अगर यहाँ से इस कलीमे से तो इला बोल के ही अगर स्टार्ट करी तो भी उसको पढ़ना पड़ता, पीछे से मिलाए तो भी पढ़ना पड़ता। तो ऐसा हमजा जो हर हालत में बाकी रह जाता उसको हमजतुल क़ुताई कहते हैं। दूसरा हमजा जो है ये हमजतुल वस्ल कहलाता, यानी ऐसा हमजा जो वस्ल में गिर जाता, यानी मिलाकर पढ़ने में वो पढ़ा नहीं जाता, इब्तिदा करे तो बाकी रह जाता, यानी इब्तिदा में उसको अ, पढ़ना पड़ता। वैसे हमजा को हमजाए वस्ल बोलते। जैसे ये दो कलीमे हैं, ये एक कलीमा है ये एक कलीमा है, तो यहाँ पर जो दिख रहा ये दूसरे कलीमे का पहला हर्फ जो है ये हमजा है। ठीक है, क्योंकि ये कलीमा यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये कलीमा सेकेंड वाला, ये पहला है कलीमा। तो दूसरे कलीमे के शुरू में हमजा जो दिख रहा, क्योंकि एक अलिफ वो खाली स्टार्टिंग लाइन दिख रही है एक अलिफ जैसी, वो अलिफ नहीं है, क्योंकि कलीमे के शुरू में अलिफ नहीं आता। तो ये हमजा है। तो अभी मैं इसको पीछे से मिलाई, ये दो कलीमों को एक सांस में पढ़ी, वो वस्ल की हालत कहलाती। तो वस्ल में क्या हो रहा, हम इसको कैसे पढ़ते, तत्लूनल किताब, नल किताब, तत्लूनल किताब, नून लाम को नून से मिलाकर पढ़ लेते हम, बीच में ये जो अलिफ जैसी लाइन दिख रही है इसे गिरा देते। तो वस्ल में वो हमजा नहीं पढ़ा जा रहा, यानी उसको गिरा दिए हम, हज्फ हो गया वो। लेकिन अगर मैं इस कलीमे से ही इब्तिदा करी, मगर मतलब कि यहाँ से मैं पढ़ना अगर शुरू करी, यहाँ से इस कलीमे से कुछ आयतें हैं यहाँ कलीमात है यहाँ पर एक आयत में, मैं यहाँ पर वो कली आयत खत्म हो रही, और भी कलीमात है समझिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से ही पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ना, इसको कुछ तो हरकत लगाना पड़ता। ठीक है, जबर जेर पेश, तो कुछ तो हरकत लगाना, तो अभी यहाँ पर इसको जबर लगाते हैं हम। तो जबर लगा के अल किताबा पढ़ के आगे कंटिन्यू करते। तो क्योंकि हम इब्तिदा शुरू कर रहे हैं यहाँ से पढ़ना, तो उसको इब्तिदा बोल रहे। तो इब्तिदा कर रहे हैं यहाँ से, तो उसको जबर लगाए थे तो इब्तिदा में वो पढ़ा जा रहा, लेकिन वस्ल में क्या हुआ था, मिलाकर पढ़ते वक्त पीछे से मिलाए तो ये गिर जाता, शुरू करे तो ही वो पढ़ा जाता। तो वैसा हमजा जो है हमजतुल वस्ल कहलाता। तो ऐसे हमजा जो वस्ल में गिर जाते लेकिन इब्तिदा में पढ़े जाते उनको हमजतुल वस्ल बोलते। अगर वो हर हर हालत में पढ़े जा रहे तो हमजा क़ुतई है। तो यहाँ पर भी जो दिख रहा ये एक स्टार्टिंग लाइन जो दिख रहा ये भी एक हमजा है। जब मैं इन कलिमात को ये कलीमा एक अल बाकुली एक कलीमा है, यहाँ से इसको बाजेर भी एक हर्फ लगा दिया, तो ये बिल बाकुली ऐसा हो गया। बिल लाम को बा से मिला रहे, ये हमजा जो दिख रहा हमजतुल वस्ल ये गिर जा रहा हमजा। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, पीछे वाले हर से मिलाने से वो गिर जाना। और अगर वहां पर ऐसा तो पढ़ते नहीं, यहाँ से इब्तिदा तो नहीं करते, यहीं से पढ़ना पड़ता मिलाकर ही। तो वस्ल में जो गिर जा रहा हमजा तो वो हमजा हमजतुल वस्ल कहला जा। सेम वैसे ही ये जो ये एक हर्फ है हुरूफे जार, और ये एक कलीमा है जिसके पहला हर्फ जो है हमजतुल वस्ल है। जब मैं इन दोनों को मिलाकर पढ़ना चाह रही हूँ तो ये क्या होता, फिल और दो बल के पढ़ लेते हैं हम, फिल फिल, फा को लाम से मिला देते हैं। ये बीच में जो दिख रहा है ये हमजा गिर जा रहा, क्योंकि ये कलीमा यहीं से शुरू हो रहा, तो ये पहला हर्फ है कलीमे का हमजा, तो वो अलिफ नहीं होता। ठीक है, वो हमजा है, तो उसको गिरा के पढ़ रहे हैं हम। तो लेकिन इब्तिदा करे तो उसको अल अर्दी पढ़ते हैं, उसको अल अर्दी। तो इब्तिदा करे तो पढ़ा जा रहा,
लेकिन मिला कर पढ़े तो वो गिर जा रहा, वैसा हमजा हमजतुल वस्ल कहलाता। तो उस्मानी कुरान, हमारे कुरान मजीद में जो है ये हमजा हमजतुल वस्ल और क़ुतई मालूम करना थोड़ा मुश्किल ही रहता। ठीक है, क्योंकि देखने से मालूम नहीं होता कि हमजतुल वस्ल है या क़ुतई है। लेकिन उस्मानी कुरान मजीद जो बाहर मिलती या यहाँ पर भी मिलती, वो प्रिंट इंडियन प्रिंट भी मिलती, लेकिन सऊदी की जो रहती, सऊदी में जो इस्तेमाल करते, वो जो रहती, उसमें है जो है उस्मानिया कुरान मजीद में हमजतुल वस्ल के ऊपर एक ऐसा सौद जैसा सर का, सौद की जो सर की शक्ल रहती, वैसी उसके ऊपर बनी रहती ऐसी। तो वो सारे हमजा जिसके ऊपर ऐसी साइन है, अलामत है, उसको हम वो हमजतुल वस्ल रहते। और हमजा क़तई भी हमारे पास ऐसे सिंपल जबर के साथ, जेर के साथ या पेश के साथ दे दिए रहते। बट उस्मानी कुरान मजीद जो रहती, उसमें जो है हमजा एक उसके ऊपर लिख दिए रहते ऐसा। ठीक है, छोटा हमजा लिख दिए रहते, आइन के सर की शक्ल वाला हमजा लिख दिए रहते अलिफ के ऊपर। उससे आइडेंटिफाई करना आसान रहता कि ये हमजा क़तई है बोल के। तो हमजा क़तई और वस्ल उस्मानी कुरान मजीद में आसान है मालूम करना, हमारे कुरान मजीद में थोड़ा मुश्किल रहता। उसको पढ़ते पढ़ते चीज़ें, कलिमात, कलमा कलीमा कैसे बना, आप उसको देखें, वो सब सारी चीज़ें करें तो वो आसान होता, वरना थोड़ा मुश्किल ही है। या फिर ग्रामर मालूम है तो मालूम हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल ये था हमजा। अलिफ और क्या है, और हमजा क्या है, और हमजा के अक़साम क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमजा जो है, जो हम पढ़ रहे, इनसे अगर हमें इब्तिदा करना है हमजतुल वस्ल से, जब एक कलीमे में हमजतुल वस्ल आ रहा कलीमे के शुरू में, तो उससे अगर मुझे पढ़ना है, वहीं से उसी हर्फ से मुझे स्टार्ट करना है पढ़ना, यानी इब्तिदा करना है, तो कैसे किया जाता। तो हमजतुल वस्ल से इब्तिदा कैसे होती उसके बारे में देख रहे। तो हमजतुल वस्ल जो है, हमारी कुरान मजीद में ऐसा सिंगल लाइन रहती है, इस पर अलामत नहीं रहती कुछ भी, कहीं सौद की शक्ल वाली अलामत कुछ नहीं रहती। लेकिन उसमें मैं आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको बताने के लिए ऐसा डाली कि यहाँ पर अगर सपोज एक लाम के साथ जब एक हमजा आ जा रहा, ठीक है, और ये हमजा लाम का जो पैर रहता, अगर एक इस्म के ऊपर दाखिल हो रहा, इस्म यानी नाउन, किसी भी चीज का नाम, किसी इंसान का नाम, ये सब नाम जो देते हम कोई भी चीज को, वो उसको इस्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस्म के ऊपर जब एक हमजा और लाम दाखिल होते तो उसका हमजा हमजतुल वस्ल ही रहता, कतई नहीं रहता, हमजतुल वस्ल रहता। और वो हमजा से इब्तिदा स्टार्ट करने के कायदे पढ़ रहे हम हमजतुल वस्ल से, तो हमजतुल वस्ल उसका रहता, आइडेंटिफाई करने आसानी रहती जब वो लाम के साथ आ रहा तो हमजतुल वस्ल जब वो इस्म पर दाखिल हो रहा तो इसको लाम तारीफ बोलते। ये हमजा और लाम का जो पेर है, इसका लाम जो है इसे लाम तारीफ बोलते। ये हमजतुल वस्ल ही रहता उसके साथ जो रहता। जब ये इस्म पे दाखिल हो रहा, उससे जब हम इब्तिदा कर रहे हैं हमजतुल वस्ल से, तो उसकी इब्तिदा जो है वो हमेशा जबर से ही होती, जेर या पेश नहीं लगाते। तो लामे तारीफ के साथ जब हम के हमजा से जब हम इब्तिदा कर रहे, इसका हमजा हमजतुल वस्ल ही रहता, और उससे इब्तिदा हमेशा जबर से ही होती, जेर या पेश से नहीं होती। जैसे ये कलीमे हैं, यहाँ पर कलीमा, ये वाउ एक हर्फ है और यहाँ से ये कलीमा शुरू हो रहा। ठीक है, तो इसका पहला हर्फ हमजा है, दूसरा लाम है, मीम, वाउ और ता है। तो ये कलीमा अगर मुझे मिलाकर वस्ल से अगर मैं पढ़ी, तो वल मरवता, तो ये बीच में जो अलिफ जैसी लाइन दिख रही, ये गिर जाती है, हम इसको हज्फ कर देते, पढ़ते नहीं। ये नहीं रहे जैसा हम वल मरवता पढ़ते। आप पीछे से कितने बार भी पढ़ो, इसे ऐसे ही पढ़ना पड़ता, वल मरवता ही पढ़ना। जब आप इस हमजतुल वस्ल से इब्तिदा करना चाह रहे, यहीं से शुरू करना चाह रहे पढ़ना अगर, तो ठीक है, तो तब क्या करना, इसको क्या लगाना, इसको हमेशा जबर से ही इब्तिदा करना, अल मरवता ही पढ़ना। ठीक है, कोई कलिमात है यहाँ पर आप इनको पढ़ना चाह रहे कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ से आके कहीं पर बीच में यहाँ पर सांस तोड़ दी है बीच में एक कलीमे पे, अब मुझे स्टार्ट यहीं से करना है हमजतुल वस्ल से, तो उसको जबर लगा कर ही अल मरवता ही पढ़ना पड़ता उसको।
पीछे से फिर से वाऊ से पढ़ रहे तो वल पढ़ना, हमजा को गिरा देना। तो ऐसा हमजा जो वसल में गिर जा रहा लेकिन इब्तिदा में पढ़ा जा रहा, वो हमजा हमजतुल वसल है। तो इसी के कायदे पढ़ रहे कि उसको क्या लगाना है हरकत। ठीक है, तो वो जब लाम के साथ आ रहा और लाम तारीफ के साथ, यानी ऐसा हमजा लाम जो एक इसम के ऊपर दाखिल हो रहा, तो उसके हमजा को हमजतुल वसल जो रहता, उसका हमजा हमेशा हमजतुल वसल रहता, तो उसके हमजा को आपको जबर से ही इब्तिदा करना पड़ता। अगर पहला हर्फ किसी कलीमे का हमजतुल वसल है लेकिन दूसरा हर्फ जो है वो लाम तारीफ का लाम नहीं है, समझिए। ठीक है, कोई और साकिन हर्फ है सपोज यहाँ पर, तो तब क्या करना, हमजतुल वसल को क्या लगाना, जबर लगाना, जेर लगाना या पेश लगाना। जबर नहीं लगा सकते, जबर सिर्फ लाम के साथ जब आ रहा तो तब ही लगाते हम हमजतुल वसल को जबर। अगर वो लाम के साथ नहीं आ रहा तो जबर नहीं लगा सकते, या तो जेर लगा सकते या फिर पेश लगा सकते हमजतुल वसल को। ठीक है, तो अभी हमजतुल वसल को जेर लगाना या पेश लगाना, ये दोनों चीजों में एक चीज देख रहे हैं हम। तो क्या करना पहला हर्फ हमजतुल वसल है, दूसरा हर्फ लाम नहीं है, कोई और हर्फ साकिन है, तो तब क्या करना, तीसरे हर्फ की हरकत देखना। तीसरे हर्फ पर क्या हरकत है उसको देखना पड़ता। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश आ रही, ठीक है, तीसरे हर्फ के ऊपर हरकत अगर पेश है, तो हमजतुल वस्ल की इब्तिदा शुरू करना, उससे पढ़ना जो कर रहे हैं हम, उसको पेश लगाकर ही इब्तिदा करना। जैसे यहाँ पर या आदमुस्कुन ऐसा कलीमा है, जब मैं इसको वस्ल में पढ़ी, मीम को सीन से मिलाकर मुस्कुन, या आद मुस्कुन ऐसा पढ़ी, मुस्कुन। ठीक है, ये गिरा दी बीच में, हमजतुल वस्ल को गिरा दी मिलाते वक्त, तो वो हमजतुल वस्ल है अभी। अभी मुझे सपोज मिला के नहीं पढ़ना, आगे जाके मैं रुकी ना यहाँ पर, मुस्कुन बोल के यहाँ पे रुक गई, तो अभी मुझे स्टार्ट करना है फिर से, पीछे से मिलाए तो फिर वैसा ही पढ़ा जाता, वो मुस्कुन बोल के ही पढ़ा जाता वस्ल में। लेकिन मुझे पीछे से यहाँ से नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ से शुरू करना है सपोज। तो मैं क्या करना तब, पहले तो हमजा हमजतुल वस्ल दिख रहा है, एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है अलीफ जैसी, उस पर कुछ भी हरकत भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी क्या करना है, इसे क्या लगा के पढ़ना, उसे छोड़ना क्या, तीसरे से पढ़ना कुन बोल के पढ़ के आगे जा सकते हैं नहीं, इसको कुछ तो लगाना पड़ता। जबर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर लाम नहीं है दूसरे पोजीशन में, तो दूसरा हर्फ है साकिन है। ठीक है, दूसरा हर्फ है कोई भी लाम को छोड़ के, तो तब क्या करना, तीसरे हर्फ की हरकत देखना। पहला ये है हमजा, दूसरा सीन है, तीसरा काफ है जिस पर हरकत पेश है। तो काफ आने की, सॉरी, पेश आने की वजह से हमजतुल वस्ल को पेश लगाकर इब्तिदा करना पड़ता, ऐसे उस्कुन ऐसा पढ़ना पड़ता। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश नहीं है, ठीक है, तीसरे हर्फ के ऊपर पेश नहीं है, पहला तो हमजा हमजतुल वस्ल है, दूसरा हमजा, दूसरा हर्फ लाम नहीं है, कोई और साकिन हर्फ है, तीसरे हर्फ के ऊपर पेश नहीं है जबर या फिर जेर अगर आ रही, तो उस कंडीशन में क्या करना, हमजतुल वस्ल को जेर लगाकर इब्तिदा करना। जैसे यहाँ पर यह कलीमा है ओलर कबू लाओ, लाम को रॉ को लाम से मिलाकर हम पढ़ रहे हैं लाओ कबू। ठीक है, ओलर कबू ऐसा पढ़ा जाता, तो ये मिला के पढ़ रहे, इसको गिरा दिया हम पढ़ते वक्त पीछे से मिलाए तो वसल में गिर गया वो। अभी इब्तिदा करना है तो क्या करना, यहाँ से मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। तो पहला हमजतुल वस्ल है, दूसरा हर्फ लाम नहीं है, कोई और साकिन हर्फ है, तो तीसरे हर्फ को देखना उसके ऊपर हरकत क्या है, जबर है, तो हमजतुल वस्ल को जेर से इब्तिदा करना पड़ता, ये कबू ऐसा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, सुम्मा रजीई। ठीक है, तो मरजीई, रॉ को मीम से मिलाकर पढ़ रहे, हमजतुल वस्ल वस्ल में गिर जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ से इब्तिदा करना है, शुरू करना है मुझे इस हर्फ से, तो मुझे तीसरा हर्फ देखना पड़ता, दूसरा रॉ है जो साकिन है, तीसरा जीम है जिस पर हरकत जेर आ रही। तो जेर आ रही या जबर अभी आया था यहाँ पर, तीसरे हर्फ पर जबर या जेर आए, तो हमजतुल वस्ल को जेर ही लगाकर इब्तिदा करना। तो हमजतुल वस्ल के साथ अगर लाम आ रहा, लाम तारीफ, और वो एक इसम पर दाखिल हो रहे, तो तब जाके हमजतुल वस्ल को जबर लगाना,
हमजतुल वसल के बाद लाम नहीं आ रहा, दूसरा हर्फ साकिन आ रहा, तो तीसरे हर्फ को देखना, तीसरे हर्फ पर पेश आया तो पेश लगाना हमजतुल वसल को। तीसरे हर्फ पर जबर या जेर आ रही तो जेर लगाना हमजतुल वसल को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वक्फ करने के कुछ बुनियादी तरीके। तो वक्फ का मतलब क्या है? सांस और आवाज दोनों को तोड़ देने को वक्फ करना कहते हैं। जब भी हम तिलावत कर रहे, पहले हमें सांस को खींचना पड़ता। अगर सांस हमारी चेस्ट में, हमारे सीने में खींचे तो थोड़ी देर के लिए ही रहती और जल्दी टूट जाती, एक या दो कलीमे पढ़ने के बाद टूट जाती। अगर हम सांस को पेट के अंदर खींचे, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता, पेट में खींचे तो ज्यादा देर तक हमारी सांस चलती और लंबे वक्त तक चलती और हमें ज्यादा तिलावत करने को मिलता। एक आयत, दो आयत, तीन भी कर सकते, उससे ज्यादा भी कर सकते, जितनी आप कर सकते उतना कर सकते। तो सांस जब हम खींच रहे पेट के अंदर तिलावत करने से पहले, उसको छोड़ते छोड़ते आहिस्ता से तिलावत करना पड़ता। एक जगह जब आपको महसूस हो जाता कि मेरी अब सांस खत्म हो जा रही, चाहे वो एक आयत के ऊपर हो या कोई गोल दायरे के ऊपर हो या फिर किसी अलामत के ऊपर हो या एक आयत के दरमियान में हो, कहाँ पर भी आपको जब महसूस हो रहा कि मेरी सांस जब खत्म हो जा रही, तो आप सांस को तोड़ देते। तो उसके साथ आवाज भी टूट जाती। सांस और आवाज जहां पर टूट जाती तो उसको वक्फ करना बोलते। जब भी हम किसी कलीमे पर वक्फ कर रहे, तो उसको पूरा जैसा दिख रहा वैसा पढ़ के वक्फ नहीं कर सकते, उसके कुछ कायदे रहते हैं, कायदे के हिसाब से हमें उसे पढ़ के सांस तोड़ना पड़ता। तो वो कायदे क्या है उसी को देख रहे हम। तो जब भी एक कलीमे के आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर या फिर उल्टा पेश अगर आ रहे, एक कलीमे के आखिरी हर्फ पर इन हरकतों में से कोई भी एक हरकत अगर आ रही, तो उसको आरजी सुकून देकर हम वह करते। कलीमे के आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश अगर आ रहे, तो उस पर अगर सुकून रहा तो कैसे पढ़ना, वैसे पढ़ के सांस तोड़ना पड़ता। उसकी पूरी हरकत पढ़ के सांस नहीं तोड़ सकते, ठीक है? इनमें से कोई भी एक हरकत आ जा रही, ये सारी हरकतें हैं एक्सेप्ट दो जबर और खड़े जबर को छोड़ के। तो दो जबर और खड़े जबर को छोड़ के कोई भी हरकत आ जाए, हमें उसे साकिन करके हम खुद लगाना। एक सुकून रहा तो वहां कैसे पढ़ते, वैसा पढ़ के सांस तोड़ना पड़ता। क्योंकि ये सुकून था नहीं, हम पढ़ रहे उसको वैसा, तो ऐसा सुकून सुकून आरिज कहलाता। पहले से अगर सुकून है तो उसे सुकून असली बोलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर युमिनूना एक कलीमा वसल में नून जबर ना से पढ़ा जाता। अगर हम इस पर सांस तोड़ दिए यहाँ पर तो युमिनून साकिन करके उसको वक्फ करना पड़ता। सागिन करके आपको सांस तोड़ना पड़ता। ठीक है, तिलावत करते जा रहे हैं आप ऐसे कंटिन्यूअस, सांस एकदम से महसूस हुई मेरी टूट जाती है अब, तो यहाँ पर अगर आपको रुकना है तो पहले देखना उसकी आखिरी हर्फ की हरकत जबर है, जेर है, पेश है, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, अगर उल्टा पेश में से एक हरकत है तो उस पर आपको साकिन करके उसको सांस तोड़ देना पड़ता। सेम वैसे ही ये दूसरा कलीमा जिस पर हरकत जेर है आखिरी हर्फ पर, जब मैं यहाँ पर सांस अगर तोड़ना चाह रही हूँ ऐसे कलीमे पर, तो जेर आने की वजह से इसको वक्त के दौरान सुकून लगाकर वक्त करना पड़ता। बिलगैबी था, वक्त करते वक्त बिलगैब पढ़ के सांस तोड़ देना। अगर फिर पीछे से यादा करने की जरूरत है, अगर वहां पर कोई अलामत नहीं है या फिर आयत खत्म हो रही, वैसी जगह से पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में आप कर रहे एक आयत के दरमियान में सांस तोड़ दे रहे, तो फिर पीछे से मिलाना जरूरी बन जाता। पीछे से मिलाते वक्त वो करीमा जैसा दिख रहा, जो हरकत दिख रही है उसके ऊपर वही पढ़ना पड़ता, साकिन नहीं करना फिर उसको। फिर वक्त के दौरान जो है उसको ऐसे चेंज करके आपको अदा करना पड़ता। तो ये सारी हरकतें यहाँ पर इन कलिमात में जबर है, जेर है, पेश आ रही आखिरी हर्फ पर, दो जेर आ रही, दो पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश अगर आ रहे, इन सारों को हम साकिन करके ही वह करते वक्त के दौरान। अगर एक कलमे के आखिरी हर्फ पर की हरकत दो जबर अगर आ रही,
किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर अगर है तो वक्त के दौरान उस पर मद्दे असली यानी दो हरकत खींचकर उसकी आवाज को तोड़ना पड़ता वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीना अन एक कलीमा है, आखिरी हर्फ पर दो जबर है, मैं पढ़ते आ रही हूँ यहाँ पर कोई आयत, सडनली मुझे फील हुआ कि मेरी सांस खत्म हो जा रही, तो आखिरी हर्फ की हरकत देखना, दो जबर जब आ रहा तो वक्त के दौरान वो ऐसा पढ़ा जाता बिना आ, आखिरी हर्फ की हरकत को पर मद्दे असली करना। जब दो जबर आ रहा तो निसा अन था, दो जबर के बदले में हमें मद्दे असली करना पड़ता वक्त के दौरान निसा आ। शई अन था, वक्त के दौरान शई आ। मुनीरन था, वक्त के दौरान मुनीर। तो मद्दे असली करना पड़ता, आखिरी हर्फ की आवाज को दो हरकत खींच कर पढ़ना पड़ता जब आखिरी हर्फ के ऊपर दो जबर आ रहे तो। जब आखिरी हर्फ के ऊपर खड़ा जबर अगर आ रहा, कलीमे का आखिरी हर्फ के ऊपर अगर खड़ा जबर है तो उस खड़े जबर को हम उमूमन दो हरकत खींचकर ही पढ़ते ना, तो वैसा ही पढ़ना, उसको मद्दे असली से ही पढ़ना, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, जैसा है वो वैसा पढ़ा जाता कलीमा वक्त के दौरान, और वसल में सेम ही पढ़ा जाता। वसल में हम उखरा बल के पढ़ते, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं ऐसे, उखरा बल के बीच में आया तो उखरा खड़े जबर को रॉ दो हरकत खींच कर पढ़ते। वक्त भी अगर करें यहाँ पर सांस तोड़ दिए तो भी वो वक्त के टाइम भी वैसा ही पढ़ा जाता, मद्दे असली से ही उख वैसा ही पढ़ना। इला वक्त के दौरान भी इला, तुथला वसल में तुथला, वक्त के दौरान तुथला सेम ही पढ़ा जाता, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अगर एक कलीमे के आखिरी हर्फ जो है उस पर वो आखिरी हर्फ ही गोलता है, ठीक है, आखिरी हर्फ अगर गोलता है तो जब भी गोलता आ रहा है इस पर कोई भी हरकत हो, चाहे दो जबर भी आ रहे तो भी गोलता को हा साकिन से बदल देना। कोई हरकत हो, दो जबर दो जेर दो पेश कुछ भी आ रहे इसके ऊपर, दो जबर भी अगर आ रहे तो गोलता को हा साकिन से बदल देना। अस्सलाता, अस्सलाह में इस पर अगर सांस तोड़ना है तो यहाँ पर हाँ साकिन रहा तो कैसे पढ़ते, वैसे पढ़ के आपको सांस तोड़ना रहता। अगर नहीं तोड़ रहे सांस तो जैसा दिख रहा गोलता के ऊपर जो हरकत रहती है अस्सलाता अस्सलाती जो भी है उसके ऊपर वो आपको वही हरकत पढ़ना पड़ता। खलीफतन दो जबर है यहाँ पर, दो जबर के बदले में मद्दे असली करना क्या गोलता पे आए तो नहीं, दो जबर के ऊपर गोलता के ऊपर दो जबर भी अगर आ रहे तो उसको आपको हा साकिन से बदल कर ही पढ़ना पड़ता। खलीफा ऐसे पढ़ के सांस तोड़ना, जब सांस तोड़ रहे तब का कायदा है ये, ठीक है। तो हसनतुन दो पेश आ रहे थे, हसना अगर सांस तोड़ रहे हैं उस पर तो दो पेश को साकिन करके वह करना, तो गोलता जब भी आ रहे तो उनको साकिन करके वह करना पड़ता। अगर मद्दे असली आ रहा किसी कलीमे के आखिर में, यानी अलिफ से पहले जबर आया या फिर या साकिन से पहले जेर या फिर वाव साकिन से पहले पेश अगर आ रहा तो वक्त के दौरान भी वो वैसा ही पढ़ा जाता। तो वक्त के टाइम और ये वसल के टाइम है, तो वक्त के दौरान भी वो सेम वैसा ही मद्दे असली के साथ ही पढ़ा जाता। जैसे अइजा, इजा वैसा ही पढ़ा था, वह हो या वसल हो सेम। दआना, दआना, ضربوا ضربوا, यस्तवी, यस्तवी सेम वैसा जैसा है वैसा ही पढ़ा जाता। तो ये मद्दे असली है, अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर मद्दे असली, ये वो साकिन से पहले पेश मद्दे असली, या साकिन से पहले जेर मद्दे असली। तो मद्दे असली जब भी आ रहा है कलीमे के आखिर में उस पर जब आप वक़्त करते तो मद्दे असली से ही वक़्त करना पड़ता। अगर लीन आ रहा किसी कलीमे के आखिर में तो लीन से ही आपको वक़्त करना पड़ता, ठीक है। या साकिन, या साकिन से पहले जबर और वो साकिन से पहले जबर जब आता तो या लीन और वाव लीन होते, तो वक़्त करते वक्त भी आपको या लीन और वाव लीन से ही वक़्त करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल रो ऐसा कलीमा है, ठीक है, रो ऐसा है, ये वाव साकिन से पहले जबर है तो ये वाव ये लीन है, ठीक है। तो औ ये लीन है, तो वक्फ भी कर रहे हैं ऐसे कलीमे पर तो पूरा पढ़ना उसको रो ऐसा ही पढ़ा जाता, उस पर कुछ चेंज नहीं रहती। खोलऊ, खोलऊ, मशऊ, मशऊ
ठीक है, तो सेम ही पढ़े जाते हैं ये कलीमे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। अगर आखिरी हर्फ जो है उस पर सुकून असली यानी पहले से ही सुकून है, तो उसको सुकून असली बोलते हैं। तो कोई कलीमा है उसमें आखिरी हर्फ के ऊपर पहले से सुकून है, हम नहीं लगा रहे उसको, पहले से ही है, तो वो सुकून असली कहलाता। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको अपनी हालत में सुकून असली के साथ ही उसको अदा करना रहता। वस्बिर ऐसा कलीमा है, तो वक्त के दौरान भी इसके आखिरी हर्फ पर सुकून है, पहले से ये सुकून असली है। तो वक्त का अगर कर रहे तो वैसा ही जैसा दिखता रहता वैसा ही पढ़ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं लेके आना। वस्बिर ऐसा ही पढ़ा जाता, ठीक है। अलैकुम आखिरी हर्फ पर सुकून है, सुकून असली, वक्त के दौरान भी अलैकुम ही पढ़ा जाता, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। फअंजिर फअंजिर फतहिर फतहिर जैसा है वैसा ही पढ़ा जाता जब उस पर सुकून असली आ रहा तो। नेक्स्ट हम देखें कलकला क्या है। कलकला यानी आवाज में जंबिश पैदा करना। जैसे एक बॉल गेंद है, आप दीवार के ऊपर फेंक रहे, वो पलट के कैसी आ रही, ऐसा आपके मखरज के ऊपर जब आवाज गिरती तो वो आवाज को पलटाना पड़ता, उसको कलकला करना कहते हैं। हुरूफ कलकला जो है ये पांच है, ये सिफत है जो सिर्फ पांच हुरूफों के अंदर ही है। ठीक है, ये भी एक परमानेंट सिफत सिफत है जो चेंज नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ ये हर एक हर्फ के अंदर नहीं है, ये सिफत ये सिर्फ जो है पांच हुरूफों के अंदर है। वो है कौफ, तो, बा, जीम और दाल। इनको याद रखने के लिए मजमुआ है कुतुबीजद, या फिर कुतुबु जद्दीन भी याद रख सकते हैं, दोनों मजमूए कोई भी, बट इनके इस मजमूए में पांचों हुरूफ है, कौफ है, तो है, बा, जीम और दाल है। ये पांच हुरूफों के अंदर ही ये सिफत है कि जब हम इनको अदा कर रहे, इनके मखरज से इनकी आवाज जो है टक्कर खाकर अलग हो जाती और इनकी आवाज में जंबिश पैदा होती। तो ये हर हालत में वाजे नहीं रहती, जब ये साकिन रहते तब इनकी आवाज जो है शिद्दत सख्ती के साथ पलटती, यानी वाजे रहती। इनकी आवाजें जो पलटती हैं वो वाजे हो जाती जब ये साकिन रहते तभी। जैसे यहाँ पर कौफ साकिन है, तो अब इसको अदा करते वक्त आवाज को इसकी पलटाना पड़ता, अ को को ऐसा पढ़ना पड़ता, बल्कि इसकी आवाज कट नहीं करना है, आवाज में जंबिश पैदा करना, पलटा के लेके आना उसको, जैसे दीवार पे गेंद गिर रहा पलट के जैसे वापस आता, तो वैसे ही आपकी आवाज में क्रिएट करना पड़ता, वो जंबिश पैदा करना पड़ता। अपो अपो अब अब अज अज अद अद। तो ये जब साकिन रहते हैं इनकी आवाजें जो है वाजे तरीके से पलटती। तो ये भी एक पर्टिकुलर सिफत है, सिर्फ पांच हरूफों के अंदर ये सिफत पाई जाती। तो इनके कुछ मरातिब है, ये जो कलकला हम कर रहे, कितनी इंटेंसिटी से कितनी शिद्दत से ये पलटता, उसके मरातिब है। तीन मरातिब है। पहला है कलकला सुगरा, यानी बहुत हल्के से जिसमें कलकला होता, जब ये हरूफ पांच हरूफ साकिन रहते, तो बहुत हल्के से जब हो रहा तो उसे कलकला सुगरा बोलते हैं। कलकला वुस्ता, इसकी शिद्दत थोड़ी सुगरा से थोड़ी बढ़ जाती तो उसे कलकला वुस्ता बोलते हैं। और कलकला कुबरा यानी थोड़ा शिद्दत ज्यादा बढ़ जाती जब हम कलकला कुबरा करते, तो कब होता है ये, उसी को देखेंगे। तो कलकला सुगरा जो है, जब एक हरूफ कलकला है जिस पर सुकून असली है और वो हालत वस्ल में अगर पढ़ा जा रहा, तो वैसा कलकला जो है कलकला सुगरा कहलाता। मतलब कि ये कलिमात जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल्स, इनमें जो है
یہ حروف قلقلہ جہاں پر بھی آ رہے، پہلے سے ہی وہ ساکن رہنا، اس کے اوپر سکون اصلی رہنا، یعنی پہلے سے ساکن رہنا ہو، تو ان پر جب ہم ایک سانس میں یعنی وصل میں جب پڑھتے جاتے رہتے تو اس پر جو قلقلہ ہوتا تو وہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہ جو میں پڑھ رہی تھی ایک سانس میں پڑھتی گئی، بیچ میں کہیں پر رکی نہیں، اس حروف قلقلہ پر نہیں رکی، اس کو ایک سانس میں پڑھی دوسرے ہر کلمے سے ملا کر، تو اس پر جو قلقلہ ہوا وہ بہت ہلکا سا ہوا، ویسا قلقلہ جو ہے قلقلہ صغریٰ کہلاتا۔ تو ایسا قلقلہ جو ہم ایک حرف کے اوپر کر رہے جو وصل میں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، وہ قلقلہ صغریٰ ہے۔ دوسرے ٹائپ کا قلقلہ جو ہے وہ قلقلہ وسطیٰ ہے۔ قلقلہ وسطیٰ جو ہے ایک حروف قلقلہ پر ہوتا، وقت کی حالت میں ہوتا، اور وہ سکون اس پر جو آ رہا وہ عارضی طور سے ہوتا یا پھر اصلی بھی رہ سکتا، دونوں طریقوں سے رہ سکتا سکون۔ جیسے یہاں پر یہ کلمے دکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک آیت کا حصہ ہے، یہ پارٹ آف این آیا، ایک فریز بول سکتے ہیں۔ تو میں اب اس کو پڑھتی رہی، کنٹینیوس آگے پڑھتی گئی، تو یہاں پر اس پر ہوتا قلقلہ، تو ایک سانس میں پڑھے تو وہ صغریٰ ہو جاتا، وصل میں پڑھے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اگر آ کر یہاں پر سانس توڑ دی، سپوز یہ آیت پڑھ رہی تھی میں، بیچ میں یہاں پر سانس توڑی سپوز، تو یہاں پر با پر تو زبر تھا، لیکن سانس اگر میں توڑی وقت کری یہاں پر تو کیا ہو جاتا، وہاں پر با پر سکون آ جاتا، ایسے وقت کے دوران۔ تو وقت کے دوران جو قلقلہ ہوتا، ٹھیک ہے، چاہے اس حروف قلقلہ کے اوپر سکون اصلی ہو یا عارضی ہو، صرف وقت کے دوران جو ہو رہا تو اس پر جو قلقلہ ہم کرتے وہ قلقلہ قلقلہ وسطیٰ کہلاتا، تھوڑی شدت زیادہ رہتی اس کی، وصل میں پڑے جانے والے سے کمپیئر کرے تو اس سے تھوڑا زیادہ رہتی یہاں پر شدت، کیونکہ ہم وہاں جا کے رک رہے تو آواز تھوڑا زیادہ شدت سے پلٹتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب، کیونکہ رک رہے وہاں پر جا کر تھوڑی شدت اس میں زیادہ بڑھ جاتی۔ یہاں پر کیا ہے، ہم ملا کر پڑھ رہے تھے، وَلَقَدْ قد ملا کے یہاں پر قلقلہ کر کے نیکسٹ مجھے یہاں نیکسٹ والا حرف بھی پڑھنا رہتا، تو اسی لیے اس کی شدت تھوڑی کم رہتی ہے، قلقلے کی آواز پلٹنے کی شدت کم رہتی، یہاں پر تھوڑی زیادہ ہو جاتی کیونکہ سانس توڑ رہے وہاں پر۔ تو وقت کے دوران جو قلقلہ کر رہے حروف قلقلہ کے اوپر، اس کے اوپر اگر سکون اصلی ہے یا سکون عارضی آ رہا وقت کے دوران، تو وہ آواز تھوڑی سی زیادہ انٹینسٹی سے شدت سے پلٹتی۔ تو یہ دوسرے ٹائپ کا قلقلہ ہے۔ تیسرے ٹائپ کا قلقلہ قلقلہ کبریٰ کہلاتا، یعنی اس کی شدت بہت زیادہ رہتی، یہ حروف قلقلہ کے اوپر جب تشدید رہتی اور حالت وقف میں اگر اس پر سکون عارضی آ رہا تو اس پر جو قلقلہ ہوتا وہ قلقلہ قلقلہ کبریٰ کہلاتا۔ فار ایگزامپل ایک کلمہ ہے جہاں یہاں بیچ میں ہے، یہاں پر انہ الحق من ربہم، حق قاف پیش قو پڑھ رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے، اس پر قلقلہ نہیں کر رہے، لیکن سپوز مجھے یہاں سانس توڑنا ہے، میں پڑھتے آ رہی ہوں ایسے، مجھے یہیں پر سانس توڑنا ہے، سپوز ختم ہو رہی میری سانس، تو کیا ہوتا ہے، یہ آخری حرف کو کیا کرتے ہم اسے عارضی سکون دے کر وقف کرتے، ٹھیک ہے، یہاں پر تشدید بھی آنا، تو تشدید آ رہی اور ایک سکون، سمجھو ایسا ہے وہ، تو وقف کر رہے ہیں ہم اس پر، تشدید والے حروف قلقلہ ہے یہ، پہلے تو اس پر تشدید ہے، مطلب اس کے اندر دو حروف ہے، دو قاف ہے اس کے اندر جو ساکن ہے ابھی، ٹھیک ہے، الحق، ایسا ہے یہ۔ تو جب میں اس کو ملا کے پڑھ رہی ہوں تو کیسے پڑھتے ہیں اس کو، اس کی شدت جو ہے، کیونکہ دو ہے اس کے اندر حرف، تشدید والے میں دو حرف رہتے ہیں، تو دو حرف رہنے کی وجہ سے اس پر جو قلقلہ ہوتا بہت زیادہ شدت سے کرنا پڑتا، آواز شدت سے پلٹانا پڑتا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں پر دو حروف قلقلہ تھے جو وقت کے دوران ساکن ہو گئے، تو بہت زیادہ شدت سے ان کی آوازوں کو پلٹانا پڑتا۔ انہ الحق، حق، تو تھوڑا شدت زیادہ، فورس زیادہ ڈال کے آپ کو قلقلہ کرنا پڑتا جب آپ تشدید والے حروف قلقلہ کے اوپر وقف کر رہے تو، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا سا ہمارا آج کا انشاءاللہ ریویژن کلاس رہتا، جو باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے، جنہوں نے ساکن اور تنوین کی کلاس رہتی، ٹھیک ہے، چلیے۔